کچھ دن پہلے احمد آباد جامع مسجد کے امام کے بارے میں سوشل میڈیا پہ ایک ویڈیو وائرل ہوا تھا. وہ ویڈیو کی سچائی کیا ہے؟ مفتی شبیر صاحب سے سنیں. دیکھیے، وہ سراسر جو ہے پروپیگنڈا ہے اور کھلا ہوا الزام ہے. میں اس بات سے آپ کو مختصر طور پر آگاہ کر دوں کہ حضرت مولانا نظام الدین صاحب کے زمانے سے یہاں ایک نائب امام کی جگہ ہے. انہوں نے اور سارے نمازیوں نے سنی مسلم وقف کمیٹی سے یہ چیزیں منظور کروائی تھی. یہی وجہ تھی کہ مولانا نظام الدین صاحب اکثر و بیشتر صرف جمعہ کو جاتے تھے اور وہ نائب پڑھاتے تھے اور نمازیوں کی طرف سے کسی قسم کی کوئی شکایت نہیں تھی. جب آپ کا مطلب یہاں سے آپ کی رخصتی ہو گئی، آپ چھوڑ چکے، بیمار ہو گئے، تو مجھے رکھا گیا. تو اسی نائب امام کے ماتحت چلتا رہا معاملہ. درمیان میں چونکہ اب کمیٹی جیسا آدمی رکھے ویسا آدمی رہے گا، جی سمجھ گیا آپ. تو کمیٹی چونکہ اس وقت میں تنخواہ کوئی خاص دیتی نہیں تھی تو زیادہ اچھے آدمی نہیں ملتے تھے. چلتا تھا ایسا ہی کہ جو مؤذن بھی ہو، نائب بھی ہو، ایسا. تو نمازیوں کی یہ فرمائش ہوئی کہ حضرت آپ اپنے مقابل کا ایک آدمی یہاں نائب رکھیں ہیں جس کو تنخواہ ہم لوگ دیں گے، اور آپ کی عدم موجودگی میں مسئلہ ہو، مسائل ہو، نماز ہو، وہ نماز بھی پڑھائے اور مسئلہ مسائل بھی لوگوں کو، نمازیوں کو بتائے. تو نمازیوں کی خواہش پر میں نے ایک اچھے آدمی کو رکھا. ماشاءاللہ نمازی اتنے خوش ہوئے کہ دیکھیے ہر چیز اللہ کی نعمت ہے، بالکل، اور ہر نعمت سے وہ ہر بندے کو نہیں نوازتا ہے. بعض یہ ہے کہ علم میں بڑا ہے لیکن آواز نہیں ہے. بعض یہ ہے کہ بھائی علم میں تھوڑا کم ہے لیکن آواز ہے. تو یہ بھی اللہ کی ایک نعمت ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اس کو ایسی آواز دی تھی کہ نمازی نماز پڑھتے تھے تو خوش ہو جاتے تھے اور مجھ سے کہتے تھے کہ آج حرم میں نماز پڑھی. سارے نمازی خوش تھے اور نمازی اس کی تنخواہ وغیرہ دیتے تھے. یہ تقریباً 10-11 سال سے ایسا چل رہا. تو میں اس سے مغرب، عشاء، فجر یعنی جو قرأت بالجہر کی نماز ہے وہ پڑھواتا تھا. اچھا، جس میں آواز کے ساتھ، ہاں آواز کے ساتھ قرأت بالجہر. اور نمازیوں کی طرف سے یا کمیٹی کی طرف سے اور یہ شہر قاضی ہمارے، ان سے بھی میں نے اجازت لے لیا ایسے قانوناً کہ کوئی بات میں یہ نہ کرے. تو انہوں نے بھی کہا کہ بھائی اتنی بڑی مسجد ہے، ایک نائب تو ہونا ہی چاہیے. بالکل. بہرحال تو یہ 10-12 سال سے معاملہ چل رہا ہے، کوئی نیا مسئلہ نہیں ہے. اب ابھی کیا ہے کہ سنی مسلم وقف کمیٹی میں جو ممبران تھے، وقف بورڈ نے ان کو جو ہے خارج کر دیا، ان کے مطلب نامنظور کر دیا، اور ان کی مدت 2020 میں ہی پوری ہو گئی تھی. تو اب نئے ممبران کو لینا ہے. تو ابھی جو ہے فی الحال ہوا تو انہی ممبروں کا رکھا ہوا یہ آدمی تھا جو میری جاسوسی کے لیے رکھا گیا تھا. اس لیے ہمارے بچوں کے ساتھ، ہمارے نمازیوں کے بچوں کے ساتھ، محلے کے بچوں نمازیوں کے ساتھ طرح طرح کے الزامات لگاتا رہا پولیس اسٹیشن میں کہ یہ آتنکوادی ہے، چندہ کر کے آتنکوادیوں کی مدد کرتے ہیں. کچھ یہ بھی کہا کہ رات میں بنگلہ دیشی سب یہاں جمع ہوتے ہیں، جو بالکل سراسر جھوٹ، یعنی خالی افواہ. تو پولیس بھی انکوائری کر کے وہ صحیح ہو تب نے بھائی. تو اپنے تو ایسا ہے نہیں. اولاً تو میں عشاء کے بعد بیٹھتا بھی نہیں ہوں، تو سری جھوٹ. اور پولیس والے بھی ساری حقیقت کو جانتے ہیں. تو اس کی سب درخواستیں ریجیکٹ ہو گئی، اپنے کسی مقصد میں کامیاب نہیں ہوا. اس وقت میں بھی مان ہانی کا اس پر جو ہے کیس ہائی کورٹ میں چل رہا ہے. خیر ہوتا رہا. اب اس کو کیا ہے کہ ایک آفس تھی سنی مسلم وقف کمیٹی کی جس میں کیمرہ سسٹم وغیرہ ہے، اور اس کو رکھا تھا جامع مسجد کی نگرانی، گائیڈنگ ویسا. تو یہ حرکت میں کیا کرتا تھا، جو ٹورسٹ آتے تھے سنا گیا کہ اس سے بھی یہ پیسہ مانگتا تھا. سمجھ گیا. تو اس میں مسجد کی بدنامی، وہ شکایتیں بھی کمیٹی میں پہنچی. پھر یہ اسی آفس میں گویا فیملی روم بنا لیا تھا اس نے. اس کے بچے سوتے تھے، ویڈیو موجود ہے جو فاروق نے ویڈیو اتارا، اور اس کی بیوی وغیرہ کپڑا وپڑا دھونا سب کرنا اسی آفس میں. اب وہ آفس ہے کہ فیملی روم. یہ شکایتیں کمیٹی میں گئی تو کمیٹی نے اس نے جو ہے تالا لگوا دیا اور ان سے کہا کہ بھائی آفس میں بھی بند رہے گا. یعنی یہ جو ویڈیو ہے یہ ایک سازش کے تحت، سازش. تو اس کو کمیٹی نے نکال دیا
जो आपको मैं लेटर जो है भेज दूंगा, जी जी कमेटी ने जो दिया इसको निकाल दिया। और कमेटी ने भी इस पर 2 तरह का केस किया है, एक वो ऑनलाइन जो कलेक्टर के यहाँ होता है और एक जो है खाड़िया पुलिस स्टेशन में। अब ये जब केस हुआ तो ये बौखला गया, तो इसने सोचा कि भाई हम तो डूबे हैं सनम, तुमको भी ले डूबेंगे, बड़ा मसला आया। तो इसको कुछ मिला नहीं, तो इसने जो है हमारी जामे मस्जिद का, हमारे नाइब इमाम का वायरल कर दिया कि मुफ्ती साहब नमाज पढ़ाते ही नहीं। अच्छा, वो जो वीडियो वायरल हुआ है जी। उसमें दावा किया जा रहा है कि कोई भी आता है और नमाज पढ़ लेता है। नहीं, ये सरासर झूठ। अच्छा, नायब इमाम पढ़ाता, ये तो बिल्कुल सरासर झूठ है। आप किसी भी नमाजी से पूछ सकते हैं, समझ गए आप। पहले मौलाना निजामुद्दीन साहब के जमाने में कुछ ऐसे नमाजी थे एक दो कि शायद वायद ना आते थे या किसी वजह से वो न रहे, तो हमारे जाफर भाई थे मोहल्ले के, वो चुन के उनसे पढ़वा लेते थे। जैसे अपने एजी माचिस वाले हमले हाजी अमीन भाई, ये दोनों मुतशर्रा और अल्लाह के फल से आवाज़ भी अच्छी है, अजान भी देते हैं एजी माचिस वाले, सलाम भी यहाँ पढ़ते थे। तो वो कभी कभार ऐसा होता, लेकिन अल्लाह के फल से जब से मैं आया हूँ कोई ये साबित नहीं कर सकता है कि किसी नमाजी ने नमाज पढ़ाया हो। क्यों? 2 नाइब इमाम है, एक कमेटी की तरफ से, एक मेरी तरफ से, तो भाई 3 हैं, तो 2 तो हाजिर रहते ही है। ऐसा नहीं कि 1-2 तो हाजिर रहते ही है। कमेटी के नाइब इमाम है, उसके भरोसे पर हम नहीं रहते। अपना जो रखा उसको मैं पाबंदी से जो है दिलाता हूँ। यहाँ तक कि देखिए फजर में अजान भी मैं यही दिलवाता हूँ। अच्छा, कभी अगर 2-4 मिनट लेट हुआ, उस बेचारे को आने में, जमालपुर में रहता है नाइब इमाम, तो लेट हुआ तो मैं फौरन मोबाइल करता हूँ कि भाई दूसरा आदमी अजान पढ़ दो। अजान क्यों नहीं हुई? कभी ऐसा होता है कि लाइट बंद होती है, अजान की आवाज़ मेरे कानों में नहीं पहुँचती है, तो मैं मोबाइल से मालूमात करता हूँ। नाइब को जो मैं पाबंदी से ले जाता हूँ कि भाई नमाज पढ़ाओ, तो क़िरात बिल जहर वाली नमाज वही पढ़ाते हैं। इसके अलावा अभी जब देखा कि मगरिब में काफ़ी नमाजी होने लगे, तो मगरिब में मैंने पढ़ाना शुरू कर दिया कि काफ़ी नमाजी होते हैं और बाहर से भी लोग आते हैं, हर तरह के लोग रहते हैं, आलिम भी आते हैं, जी। तलबा भी आते हैं। तो मगरिब में मैंने पढ़ाना शुरू कर दिया ताकि किसी को किसी किस्म के इतराज़ का मौका ना मिले और नमाज अच्छी हो अपनी। तो आरिफ भाई, अल्लाह का फजल है कि हमारे यहाँ आज तक कोई ये नहीं कह सकता कि अरे गहरे या नमाजियों में से कोई, नमाजी में कोई ऐसा है ही नहीं जो इमामत कर सके। जी 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 कोई ऐसा नहीं है। आप देखिए, मैंने नायब रखने की एक वजह यह भी है कि भाई कमेटी का जो नायब इमाम है उसी को मुअज्जिन की भी जिम्मेदारी। आप फर्ज कीजिए कि मैं नहीं हूं, अब वो आजान पढ़ा, अब जमात के लिए वो तकबीर पढ़ेगा कि इमामत करेगा? तो ढूंढना पड़ता था नमाजियों में से कि कोई तकबीर पढ़े। अब आप तो जानते हैं कि आजकल हमारी कौम का क्या हाल है, समझ गया। तो इस वजह से भी मैंने रखा कि भाई हालांकि शरीयत का कानून है कि भाई वो तकबीर पढ़ के मुसल्ले इमामत पे जा सकता है, लेकिन आवाम में गलत फहमी हो, इस वजह से मैंने रख दिया एहतियातन। और नमाजी भाई के ताउन से उनको हम तनख्वाह देते हैं, खाना मेरे घर खिलाते हैं, रहने का इंतजाम मेरी तरफ से है, सारी फैसिलिटी। अच्छा हजरत, एक चीज ये बताइए, शरीयत क्या इस मामले में कहता है, क्योंकि हाँ, वो भी बहुत जरूरी है। शरीयत का मसला ये है कि इमाम को इख्तियार है कि वो अपना नायब खुद रख सकता है। इसकी जिंदा मिसाल प्रैक्टिकल में आप देखें तो दिल्ली जामे मस्जिद को देख लीजिए। इमाम बुखारी, अहमद बुखारी, वो गवर्नमेंट की तरफ से, और उन्होंने अपने लड़के को अपना नायब जो है मुतय्यन किया है, रख दिया है, समझ गया। वक़्फ़ बोर्ड ने मंजूर भी किया कि भाई आपको हक है। यह शरई मसला। इमाम की जिम्मेदारी है, देखिए, वक्त पर जमात कायम करना ताकि नमाजियों को कोई तरह की परेशानी न हो। यहाँ भाई आजकल टाइम किसी को नहीं, इसलिए अब शरई मसला तो यह है कि भाई इमाम चाहे तो 10 मिनट ताखिर कर सकता है। अच्छा, हाँ, इमाम को, लेकिन शरीयत का मसला अपनी जगह है, लेकिन आवाम का भी ख्याल रखना पड़ता है। धंधा वाले हैं, व्यापारी हैं, दुकान वाले हैं, कोई ऐसा है कि बेचारा हॉस्पिटल में है, कहीं ज़रूरत है, तो इसलिए हम वो ना इख्तियार का इस्तेमाल करते हैं, ना ताखिर करते हैं, बल्कि कभी कभी हमको जाने में 10-5 सेकंड भी देर हो जाती है तो फौरन इमाम खड़ा हो जाता है। 3 है, कोई भी खड़ा हो जाए, मुझे भी कोई तकलीफ नहीं, मेरी तरफ से इजाज़त। तो नमाजी खुश हैं, कमेटी की तरफ से कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, शहर काजी की तरफ से कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। अल्लाह के फल से 12 साल से ऐसा चल रहा है, लेकिन इसको एक तरह का फितना फैलाना था, जो झूठी अफवाह फैलाई
गहरे गहरे पढ़ाता है। आप किसी वक्त कोई भी मीडिया वाले नमाजी से आके मेरी गैर हाजिरी में पूछ सकते हैं कि भाई क्या यहाँ नमाजियों में से कोई नमाज पढ़ाता है। एक दिन की बात मैं आपको बता दूं, मैं यहाँ नहीं था, समझ गया, और मेरा वो नायब इमाम जो कमेटी की तरफ से है वो अजमेर शरीफ गया हुआ था। अब असर के वक्त जो है ये मेरे नायब इमाम की आंख देर से खुली, जब तक जमात का टाइम हो गया ये गया वजू करने, तो बेचारे नमाजी इतने सीधे साधे यहाँ कि वो फौरन जो है आया और इनको ले गए और नमाज पढ़ाया, समझ गया। ऐसी पोजीशन, एक मिसाल मैं दे रहा हूँ, ये मेरी जिंदगी का एक मिसाल। हालांकि मैं उसके बाद बहुत बिगड़ा भी कि भाई जब ना कोई रहे तो खास ध्यान दिया करो, हाँ कोई है तो कोई बात नहीं, चलो बिल्कुल। तो मैं इन सब चीजों का आरिफ भाई बहुत ख्याल रखता हूँ, क्योंकि एक जिम्मेदारी है और जिम्मेदारी को निभाना अपना फर्ज बनता है। अपने तनख्वाह लेते हैं तो हम किसी नमाजी की नमाज खराब हो, कल कयामत के दिन हमसे पूछा जाएगा। अच्छा, वो वीडियो में तनख्वाह की बात आपकी की जा रही है, हाँ, और ये भी आरोप लगाया जा रहा है कि अक्सर आप फजर की नमाज में नहीं आते हैं। हाँ सही है, तो नाइब इमाम है। अच्छा, फजर में अक्सर मैं क्यों नहीं जाता हूँ कि नमाजी बहुत कम रहते हैं, 10-15 नमाजी रहते हैं, नाइब इमाम जो है पढ़ा लेता है, समझ गया। तो ये इल्जाम उसका गलत है भाई, हमने पढ़ाए, मेरा नाइब तो है ना। जमात हो रही है कि नहीं वक्त पर, ये मेरी जिम्मेदारी है। जमात हो रही है, ऐसा तो है नहीं कि भाई इमाम कोई हाजिर नहीं नमाजी पढ़ाता हो, ये साबित कोई नहीं कर सकता। तनख्वाह हम लेते हैं तो हमको इख्तियार भी तो है। आप देख लीजिए फतवा की किताब, मैं आपको एक फतवा ऐसा बता दूं कि एक शख्स ने आला हजरत फादिल बरेलवी से फतवा पूछा कि एक शख्स वक़फ़ कमेटी की मस्जिद में इमाम मुकर्रर है, लेकिन वो दूसरी जगह इमामत करते हैं और यहाँ के लिए उन्होंने अपना एक नायब मुकर्रर कर रखा है, आया वो वक़फ़ बोर्ड की तनख्वाह का हकदार है या नहीं? तो जवाब दिया गया कि बेशक वो पूरी तनख्वाह का हकदार है और नायब इमाम को उतना ही लेगा जितना वो तय करे। ये नहीं कि नियाबत है तो उसकी अदम मौजूदगी में उसकी तनख्वाह का वो हकदार नहीं है कि हम भाई नायब की इमाम की जगह पढ़ा रहे हैं तो इमाम की तनख्वाह हमको दो। जो तनख्वाह इमाम मुकर्रर करेंगे वही तनख्वाह वो ले सकता है। बिल्कुल। तो इमाम को ये इख्तियार है, समझ गया। अब क्या आगे की क्या कार्रवाई? आगे जो है हम इसके ऊपर मानहानि का दावा कर रहे हैं, नोटिस देंगे और वो तैयार हो रही है, और साइबर क्राइम में भी हम दरखास्त पेश करेंगे। और झूठा इल्ज़ाम इस तरह से लगा कि मुझे बदनाम करना वो बर्दाश्त नहीं। नमाजियों ने कहा, हालांकि बहुत सारे नमाजी ऐसे हैं जो तरह तरह की बातें करते हैं, लेकिन हम कानून को हाथ में लेना नहीं चाहते और हम छेड़छाड़ भी नहीं। हम कानून, एक तो उसको मुंह लगाना नहीं पसंद करते। वो आदमी ऐसा है जो मानिक चौक की लारियां हजीरे में ज़मीन पर रख करके किराया खाने वाला, फुटपाथ को कब्जा करके और दूसरे को किराए पर देने वाला, ये ऐसा आदमी है। उसी का भाई है बेचारा, मेहनत करता है। देखिए सुन्नी ये मुस्लिम सोसाइटी में उसने फ्लैट खरीदा, अच्छा, और हज भी किया। और ये है कि वैसे ही है, चूंकि इसके पास घर और ऐसा है नहीं तो इसने सोचा कि भाई अपने को ऑफिस का रूम मिल गया, इस्तेमाल करो, फायदा उठाओ, समझ गया। तो ये जो है जासूसी और फितना परवरी करता है। न मोहल्ले में इसकी कोई इज्जत है, न हमारे नमाजियों में कोई। ये नमाज भी नहीं पढ़ता, ये नमाज भी कभी जामे मस्जिद में पढ़ने आज तक नहीं आया। मेरे 28 साल हो गए, मैंने इसको नहीं देखा, समझ गया। तो जो नमाजी नहीं पढ़ता भाई, नमाजी खुश है, नमाजी राजी है, नमाजी की फरमाइश पर रखा, तुमको क्या तकलीफ हो रही है भाई? तो ये थे मुफ्ती साहब, जो वीडियो वायरल हुआ था उसकी सच्चाई क्या थी उन्होंने साफ तौर से बताया, और साथ ही साथ कहा कि ऐसे जो लोग हैं जो मुस्लिम समाज में बेचैनी पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं, उनको भी आने वाले दिनों में इसका माकूल जवाब दिया जाएगा इंशाअल्लाह। अगर हम ये थे मुफ्ती सब्बीर साहब, वीडियो आगे शेयर जरूर करें।